And the most merciful. Dear student friend follower, in today's session, you people will learn about history of America. You'll be learning about the periods of English literature, especially in American literature. Periods of American literature. You'll be learning about transcendentalism. You'll be learning main writers of transcendentalism, and you will be learning about history of American literature. I'll be teaching you about overview of American literature. So after attending this lecture, you people will able to classify certain periods of American literature. I mean to say, if there is certain age or certain kind of literary genre in front of you, especially from American literature, you people will be able to recognize this era belong to such and such literature. You will be easily recognized because I'll be telling you a lot of things. I have planned a very comprehensive lecture because after this lecture you people will be understanding rest of the work like American novel, American poetry, American drama. So if we talk about the American writers, they are very prominent, especially in the novels. So further, if we talk about the drama, so in America, drama was very prominent during the 20th century, especially dramatists like Eugene O'Neill. He, made a lot of progress, especially in drama. So he just combined the ancient literature. Ancient is really a real literature. So he combined the ancient literature and reproduced a good form. So all the writer, especially American writer, you'll see that they are very visionary. They leave unto the reader to derive meanings. They're not forcing you to do this or that. So they just leave text in front of you, and after that they let the reader decide what is the meaning. Very visionary, very comprehensive. So talk about the Robert Frost, talk about the Walt Whitman. So these kind of people, they were very visionary. They worked out. Talk about John Ashbery. So all writers are very witty. Talk about Richard Wilbur. Talk about Emerson. Talk about rest of the poets, especially from America. They were very witty. So now today we'll learn how American literature started. So what was the background of American literature and what is the history of America? So let's see. Then further you'll be learning about the Puritan influence on the American literature. Why? Puritans were in, America, and they dominating America. Even Arthur Miller, he has written about the Puritans because Puritan were over there. And what Puritans were doing over there? Talk about Arthur Miller play we already discussed, and he has written the same play from The Devil in the Massachusetts. So in that play we see that there was he has given an allegory of the American society. So John Proctor was a hero over there, and Arthur Miller showed the real life of the Puritans. So how Puritans, they were dominating the scene. Even the just like in a Crucible, we have seen in a Crucible play what happened. They were just some people are saying that they're just blaming on certain people and they are just arresting them, and after arresting, they are also executing them without reason. They just executing someone blamed on them, and later when investigated, the same matter was investigated, so they proved innocent. So what happened? Arthur Miller exposed the people. He exposed that how McCarthy, he was just leading people towards destructions. He just imposing, just blaming people and investigating and giving and putting them in trials and just for nothing. So same way he has given overview of the Puritan people, how Puritan people, they dominated America and American people, and how people suffered due to their religious belief. As Russell said, every fanatic religion is harmful for society. Every dogmatic and fanatic person or belief is harmful for society. As Bertrand Russell said, I will not fight for my beliefs or my ideas. My belief can be wrong. It can be further investigated. It can be deconstructed. He was a realist, Bertrand Russell. बर्टन रसल कहते हैं कि मैं अपने बिलीव के लिए लोगों से नहीं लड़ूंगा, मेरा बिलीव रॉन्ग हो सकता है,
इससे बेटर बिलीव आ सकता है, इससे बेटर आइडिया आ सकता है। एवरी फनेटिक डॉगमेटिक बिलीव और आइडिया इज हार्मफुल फॉर सोसाइटी। वो कहते हैं कोई भी आइडिया, कोई भी ऐसा बिलीव जो डॉगमेटिक होता है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है। अमेरिकन लोगों को वो क्रिटिसाइज करता है, वो कहता है ये बिल्ली और कुत्तों से मोहब्बत करते हैं, बिल्ली कुत्तों से मोहब्बत करते हैं लेकिन ये इंसानों को मारते हैं। द स्कॉलर बाय द राल्फ वाल्डो एमरसन। एमरसन बड़ा ग्रेट पोएट है अमेरिका का, और एमरसन का नाम जब आएगा तो साथ वाल्ट विटमैन का नाम आएगा। ये दोनों दोस्त भी थे और ये इन्फ्लुएंस था वाल्ट विटमैन इससे, एमरसन से। सो लेट्स स्टार्ट। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट अमेरिका and periods of American literature. So once you'll be able to understand about the background information as well as about the period of American literature, you'll be able to understand American literature easily. आपको पता होगा अमेरिका डिस्कवर किया था कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस उसका नाम था, और उसने अमेरिका को डिस्कवर किया। क्या नाम था उसका? क्रिस्टोफर कोलंबस। ये नाम याद कर लें। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया, यानी उसने डिस्कवर किया। उससे पहले किसी को कुछ नहीं पता था कि अमेरिका क्या है और कहाँ है। यानी ये 1492 में इसने इसको डिस्कवर किया। तो जैसे ही ये इसको डिस्कवर करता है तो वहाँ फिर फ्रेंच, जर्मन्स और उसके अलावा पुर्तगीज़ और उसके अलावा और भी कुछ लोग, स्पेनिश, ये सारे जो लोग थे इनमें दौड़ लगी थी कि दूसरे कंट्री को अपनी कॉलोनीज़ बना लें। हम बड़े रिफाइंड पीपल हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग कहते थे हम लोगों को क्या करेंगे, रिफाइंड करेंगे। आपने पढ़ा होगा उसको, एडवर्ड सईद को, तो एडवर्ड सईद भी यही बात करता है। यानी अमेरिका कब डिस्कवर हुआ है? अमेरिका को डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में, और जैसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगीज, स्पेनिश एंड लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्री दे स्टार्टेड टूरिंग ओवर देयर, दे स्टार्टेड हैविंग अ टूर ओवर देयर. They went over there and they occupied land because they think that we are very refined people and we have a divine right rule on the people. Since we are very refined and it's our duty to refine other. Even they have written certain literature that people like the African country, Asian country and the third world country, they are eating their flesh as well. They are even eating their dead people. They don't know how to bury their people. They don't know how to live. They don't know how to spend life. And we are refined enough and we will teach them how to live. हम उन्हें जाकर बताएंगे कैसे रहना है, क्या तरीक़ेकार है, क्या मेथड है। वो रिफाइंड नहीं है, वो अपना फ्लैश तक खा जाते हैं, बॉडी तक खा जाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, वो उन्हें पता ही नहीं है कोई क्या, what is what and who is who. So we'll teach them, we'll tame them, we'll refine them. हमारी ड्यूटी है कि हम उनको रिफाइन करें, और इसीलिए इन्होंने लोगों को क्या समझा, फिर जानवर बना लिया। इवन के जैसे आपने देखा होगा कोंगो के अंदर ये गए हैं, और कोंगो के अंदर जाकर इन्होंने कैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस जो जोसेफ कॉनरेड ने जो लिखा है, उसने कहा कि जब मैं वहाँ देखता हूँ कि उन लोगों को चेंड किया हुआ है और बांधा हुआ है और उनसे वर्क ले रहे हैं, और उन लोगों को, ऐसे लोगों को बांधा हुआ है जो कि आसानी से मूवमेंट भी नहीं कर सकते। सो दीज पीपल आर जस्ट टेकिंग वर्क फ्रॉम दम। जो बेल्जियम के लोग थे उन्होंने उसको कॉलोनी बनाया हुआ था कोंगो को। तो इस तरह यानी कोंगो को बेल्जियम पीपल ने बनाया हुआ है, और पुर्तगीज़ और स्पेनिश और जर्मन और फ्रेंच, चूँकि अमेरिका बहुत बड़ा था, पाकिस्तान जैसी 55 राउंड अबाउट स्टेट्स हों तो वो कहते हैं एक अमेरिका। उसको बाद में नाम मिला USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो
तो ये बहुत बड़ा कंट्री था, उसमें एक कंट्री यानी एक तो कोई ऑक्युपाइड नहीं कर सकता था, तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने उसको ऑक्युपाइड किया हुआ था, मतलब कॉलोनी बनाया हुआ था। कुछ पार्ट्स जो हैं वो फ्रेंच ने लिए हुए थे, कुछ जर्मन ने, कुछ पुर्तगीज़ ने, कुछ स्पेनिश में। आज भी वहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, जर्मन और फ्रेंच और इस तरह दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ की लैंग्वेज है वो बोली जाती हैं। जब इंग्लैंड को पता चला, ये सारे एक रेस में थे कि हम कुछ पार्ट्स जो हैं ले लेंगे, क्योंकि इंग्लैंड जो था उसने इंडिया पे भी कब्ज़ा किया हुआ था, सब कॉन्टिनेंट पे, अफ्रीका पे और कुछ इजिप्ट और इस तरह के बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा किया हुआ। जब ये जाते हैं, ये बेटर ऑर्गेनाइज्ड थे, ये ऑर्गेनाइज थे और इन्होंने उनसे फिर इलाके छीनने शुरू कर दिए। मतलब जो फ्रांस के पास थे, जो जर्मन के पास थे या दीगर यूरोपियन कंट्री से भी इन्होंने इलाके जो हैं छीनने शुरू कर दिए। कहते हैं कि जब ये वर्जीनिया में गए, वर्जीनिया एक इलाका है अमेरिका का, ये वहाँ पर गए तो इन्होंने देखा वहाँ ग्रीनरी थी, ठीक है, वहाँ पे क्या था, फॉरेस्ट था और बड़ी खूबसूरत लैंड थी। वो कहते इतनी खूबसूरत लैंड, हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ है, मशीनरी है, बिल्डिंग है बड़ी बड़ी, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो ग्रीनरी ग्रीनरी है। दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा वो ओल्ड इंग्लैंड है और ये न्यू इंग्लैंड है। क्या नाम दिया उसको फिर उन्होंने? इसीलिए इसका नाम रखा वर्जीनिया। वर्जीनिया का मतलब होता है ऐसा इलाका जिसको किसी ने अभी टच नहीं किया, वर्जन होता है ना, तो उसी से वर्जीनिया इन्होंने नाम रखा उसका। तो उसको कह दिया कि वो ओल्ड इंग्लिश है, ये ओल्ड इंग्लैंड है और ये क्या है, न्यू इंग्लैंड। और यहाँ पे आके ये आबाद हो गए। अब जब ये वहाँ पे आए हैं तो मोस्टली उस वक़्त अमेरिका के ऊपर इन्होंने कोशिश की रिलीजियस जो थाट्स हैं वो इम्पोज करने की। मतलब उस वक्त अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो मोस्टली पीपल थे वो प्योरिटन्स थे और प्योरिटन एज ही चल रही थी। अगर देखा जाए तो जो प्योरिटन एज है, मिल्टन की एज जिसे कहते हैं, जिसे इंट्रेगनम एज कहते हैं, जिसे पार्लियामेंट ऑफ सेंट कहते हैं, जिसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जब पार्लियामेंट ही गवर्न कर रही थी। आपको पता है कि चार्ल्स टू जो था उसके बारे में कहते थे ये प्योरिटन के, ये बड़ा वलप्चुअस किंग है चार्ल्स टू। हमने जब एज को पढ़ा था, याद करें चार्ल्स टू की एज को, उस लिटरेचर को जो हमने पढ़ा था, तो चार्ल्स वन को जब हमने पढ़ा था तो चार्ल्स वन को वो कहते थे ये बड़ा वलप्चुअस किंग है, ये इंग्लैंड की दौलत जो है वो ज़ाया कर रहा है, 1000+ इसकी मिस्ट्रेस हैं, पार्लियामेंट के साथ उसकी बनती नहीं थी। और फिर ये क्या करते हैं, सारे मिलके पार्लियामेंट, सारे जो मेंबर हैं, ये चार्ल्स टू को पकड़ के उसकी एग्जीक्यूशन कर देते हैं। उसका बेटा जो है वो दौड़कर फ्रांस चला जाता है। वो स्टडीड इन डिटेल। अब जैसे ही वो उसके बाद जो चार्ल्स वन के बाद जो एज आती है, वो उस एज का नाम था प्योरिटन एज। उस प्योरिटन एज में उन्होंने क्या किया, थिएटर बंद कर दिए, मज़हब इम्पोज कर दिया, रिलीजियस रूल इम्पोज कर दिए। इंग्लैंड के लोग जो थे वो तो आज़ादी, वो तो रेनेसेंस एज से निकल कर आ गए थे, वो तो एलिजाबेथन एज से निकल कर आ गए थे। वो तो चाहते थे एन्जॉयमेंट, फन, अम्यूज़मेंट और साथ साथ वो थिएटर चाहते थे, ठीक है, मूवीज़, एन्जॉयमेंट, ये चीज़ें चाहते थे। इन्होंने बंद कर दी। अब वो फिर चार्ल्स टू को बुलाते हैं और चार्ल्स टू वापस आता है। उसके बाद हमने देखा वो मिल्टन जो है उसे भी पकड़ा जाता है। एनी हो, उस वक्त चल रही थी मिल्टन एज। तो ये क्या कर रहे थे, यहाँ से मोस्टली जो थे प्योरिटन्स जो थे वो जा रहे थे अमेरिका में, क्योंकि हुकूमत उनकी थी। तो वो यूएसए में जाकर क्या कर रहे थे, वहाँ पे अपना मज़हब फैला रहे थे। क्या मज़हब था उनका? प्योरिटन। वो प्योरिटनिज्म को वहाँ पे फैला रहे थे अमेरिका के अंदर, ठीक है। अब वो जो प्योरिटन एज थी, यानी जो इंग्लैंड की अब मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड के अंदर जो प्योरिटन एज थी वो स्टार्ट होती है 1600 से 1660 तक, ठीक है। ये क्या है, प्योरिटन एज है। उसके बाद फिर चार्ल्स टू आएगा तो कैरोलन पीरियड और इस तरह फिर जैकोबियन पीरियड, वो सारा मैंने आपको बताया हुआ है। अब 1600 से 1660 जो है ये क्या है, ये प्योरिटन एज है। और ये अमेरिका को मतलब अमेरिका के ऊपर कब ये काबिज हो रहे हैं, तकरीबन इन्होंने कोलंबस ने डिस्कवर किया इसको 1492 में।
और उसके बाद इन्होंने जाना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली ये बहुत सारे कुछ इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में ये काबिज हो गए और इन्होंने वहाँ पे अपना लिटरेचर जो है वो फैलाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड ने ऑक्युपाइड कर लिया अमेरिका को और वहाँ पे बहुत सारे जो दूसरे जो इंपीरियलिस्ट थे, जैसे वो छोटे छोटे कंट्रीज थे, वो इंग्लैंड तो चूँकि बहुत सारी कहते हैं कि इंग्लैंड की ज़मीन के ऊपर यानी इंग्लैंड की सल्तनत पे तो सूरज ही गुरूब नहीं होता था, इतनी उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हुई थी। तो इनके पास असलिया भी ज़्यादा था, एमुनेशन और जदीद एमुनेशन, और इन्होंने जाके इवन के न्यूयॉर्क पे कब्ज़ा कर लिया और वो जर्मन के इलाके जो थे उनसे वो भी छीन लिए, जर्मनी ने कब्ज़ा किया हुआ था उनसे भी छीन लिए इलाके। अमेरिका जो है वो क्या हो गया, अमेरिका उस वक्त ज़्यादा अटैच था नेचर के साथ, और उस वक्त अमेरिका के अंदर यानी जब ये वहाँ पे गए हैं तो अमेरिकन लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, यानी वो इतने कल्चर्ड और रिफाइंड नहीं थे। अमेरिकन वर नॉट रिफाइंड। ये जब वहाँ पे गए हैं इन्होंने पहले तो जाके अपने प्योरिटनिज्म को प्रीच करना शुरू कर दिया। तो डेफिनेटली वो प्योरिटनिज्म के मानने वाले थे, तो जो इनके सोल्जर थे वो अपनी डायरी लिखते थे, नोट कर लें, वो डायरी लिखते थे, डायरीज। तो जब वो डायरीज लिखते वो क्या करते, उन डायरीज के ऊपर अपनी वो जो लिटरेचर होता वो लिख देते। उससे पहले अमेरिका के अंदर चूंकि इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, रिफाइंड नहीं थे, वो तो एक जंगल का इलाका था, ये इन्होंने जाके फिर आबाद करना शुरू कर दिया। तो वो लोग ओरल लिटरेचर पहले प्रोड्यूस कर रहे थे। ओरल लिटरेचर के मुंह से ही बस कोई स्टोरी सुना दी, किसी की स्टोरी हो, जैसे बेओवुल्फ है उसका कोई राइटर नहीं है तो वो भी ऐसे सुनते सुनाते आई है। तो इस तरह लोग फिर क्या थे, ओरल लिटरेचर जो है उस वक्त प्रोड्यूस कर रहे थे। अमेरिका जो है वो नेचर के बड़ा पास था। उन्होंने कहा ये कोई वर्जीनिया, ये न्यू इंग्लैंड मिल गया हमें, हम वो हैरान हो जाते हैं। अनटच्ड लैंड, न्यू लैंड, ग्रीनरी, पेस्टोरल फॉरेस्ट एंड ट्रीज एंड क्लोज टू नेचर, अनटच्ड लैंड, और उन्होंने उसका वर्जीनिया नाम रख दिया। एक का नाम रख दिया ओल्ड इंग्लैंड, एक का नाम रख दिया न्यू इंग्लैंड। अब उनको मिल गया न्यू इंग्लैंड। अब ये क्या करते, यहाँ से सोल्जर जो हैं वो जाते, और वैसे भी वो प्योरिटन एज चल रही थी, तो ये क्या करते वहाँ पे जाकर अपना मज़हब जो है उनको टीच करना शुरू कर दिया। और कैसे उनको इन्होंने लिटरेचर के ज़रिए कैसे उनको फैलाया। डिस्कोर्स एनालिसिस में हम देखते हैं, जैसे डिस्कोर्स एनालिसिस होता है ना, डिस्कोर्स का मतलब होता है कि डिस्कोर्स का मतलब ये नहीं होता बातचीत, हम कहते हैं ना डिस्कोर्स मतलब बातचीत, ये तो जनरल एक मीनिंग है ना। डिस्कोर्स का मतलब होता है कि आप किसी को इमेज के ज़रिए बात बताएं, इशारे के साथ बात करें। और डिस्कोर्स होता है कलेक्टिव होता है। डिस्कोर्स क्या होता है, कलेक्टिव, कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक डिस्कोर्स के अंदर। मैं अगर यहाँ पे क्रॉस बना देता हूँ, ये भी एक डिस्कोर्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे चांद बना देता हूँ, ये भी डिस्कोर्स है। मैं ख़ास विक्ट्री का कोई साइन बना देता हूँ, वो भी एक डिस्कोर्स है। क्योंकि अगर मैं ये इसको डिस्कस करूँगा तो इसके अंदर क्रिश्चियनिटी आएगी, सेक्ट आएंगे, उनकी बुक आएगी, बाइबल आएगी, चर्चेज आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये साइन के अंदर आ जाएंगी। यानी हमेशा डिस्कोर्स जो होता है, एक तो है ना उसका छोटा मानी के बातचीत, डिस्कशन, लेकिन डिस्कोर्स का मतलब बड़ा वसी होता है, कलेक्टिव होता है, ग्रुप की फॉर्म में होता है। उसके अंदर बहुत सारे मानी बंद होते हैं एक डिस्कोर्स के अंदर। और जब हम किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं अबव सेंटेंस लेवल, वो डिस्कोर्स हो जाता है। वैसे तो वो लिंग्विस्टिक लेवल पे एनालिसिस होता है, तो डिस्कोर्स एनालिसिस उसका तब बनता है जब हम एक सेंटेंस से ज़्यादा लेवल पे उसको एनालिसिस करते हैं, वो टेक्स्ट बनती है, फिर ओवरऑल हम उसका एनालिसिस करते हैं। अब ये क्या कर रहे थे, अब रिलीजियस डिस्कोर्स कर रहे थे। वहाँ पे क्या कर रहे थे, रिलीजियस डिस्कोर्स के ज़रिए ये अपनी ख़ास आइडियालॉजी जो है वो अमेरिकन के अंदर इन्फ्यूज़ कर रहे थे। और इसके लिए उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। इन्फ्यूज़ का मतलब होता है उनके माइंड में डालना। अब ये उनको जो आइडियालॉजी दे रहे थे, वो कौन सी आइडियालॉजी दे रहे थे, मज़हब की। चूँकि वो लोग तो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उनका तो कोई मज़हब नहीं था, वो तो एक जंगल के रहने वाले लोग थे। वहाँ पे मोस्टली अनकल्चर्ड लोग थे, अनपढ़े लिखे, जैसे मैंने बताया कि ओरल कल्चर, उनका तो लिटरेचर ही ओरल था। तो ये वहाँ पे जाते, डायरी लिखते, ये इनके पास प्रिंटिंग प्रेस भी थी, इनके पास बुक्स भी थी,
ये वहाँ पे जाके इन्होंने लिटरेचर और पादरी और अपने प्रीस्ट और इस तरह प्योरिटन्स और बड़े बड़े जो चर्चेस जो हैं वो वहाँ चले गए और ये लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर प्रोड्यूस करने लगे और इन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। इसके ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर दिया हुआ है, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा, बल्कि सेंड किया है ग्रुप में। अमेरिकन लोग जो थे वेल लेटर पर्सन नहीं थे, ना उन्हें कोई समझ आती थी। इन्होंने उनको फोर्सफुली कहा कि आप प्योरिटन बन जाओ, इवन मारना शुरू कर दिया, उनको कत्लो गारत शुरू हो गई। अगर देखा जाए तो दो मेन सेक्ट हैं, जैसे मुसलमानों के दो सेक्ट हैं, शिया सुन्नी, और उनके मेन सेक्ट हैं एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। अब ये दो जो सेक्ट हैं ये आपस में अक्सर लड़ते रहते थे। कैथोलिक उस वक्त पावर में ज़्यादा थे और वो प्रोटेस्टेंट को मारते थे। तो फिर क्या करते, प्रोटेस्टेंट जो थे वो डिफरेंट कंट्री, क्योंकि ये नया नया सेक्ट बना था तो ये ज़्यादा डोमिनेट करते थे, कैथोलिक, रोमन कैथोलिक। ये बात गौर से समझिएगा, ये बुक्स में नहीं लिखी होती। अच्छा, रोमन कैथोलिक जो हैं ये बहुत कम, ये बहुत ज़्यादा थे और पावर में थे, ये इनको मारते थे। तो ये क्या करते थे, ये फिर अपनी जगह तलाश कर रहे थे। तो उस वक्त जो भी मिनॉरिटी में था, जैसे हिटलर जो है वो जर्मनी में ज्यूज़ को मार रहा था, मतलब वहाँ पे भी ज्यूज़ को किसी ना किसी तरीके से डोमिनेट तो कर रहे थे लोग। तो हर जगह से जब लोगों को मार पड़ रही थी तो वो इकट्ठे कहाँ हो रहे थे, अमेरिका एक न्यू लैंड थी, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे थे। आज भी देखते हैं ना, कहते हैं यूएसए में ज्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा हैं यार वहाँ पे, इंग्लिश पीपल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। देखते हैं इंडियन पीपल जो वो भी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। क्यों भाई, ये क्यों ज़्यादा है? ये लोग वहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए थे, मतलब वहाँ पे जू आके इकट्ठे हो गए, क्रिश्चियन आके इकट्ठे हो गए, ठीक है। जो भी वहाँ पे जो पनाह लेते तो वो कहाँ पे आ जाते, वो अमेरिका में आके सेट हो जाते और वो उनको सपोर्ट करते थे, इंग्लिश पीपल। तो इस तरह बहुत सारे वहाँ पे प्रोटेस्टेंट इकट्ठे हो गए। प्रोटेस्टेंट इवन के हमने देखा कि वो क्रूसिबल को जब हमने पढ़ा तो जॉन प्रॉक्टर जो था वो नहीं मानता था प्योरिटनिज्म को, तो क्या उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। यानी वो विचेस पे बिलीव करते थे, विच क्राफ्ट पे बिलीव करते थे, मज़हब पे बिलीव करते थे, डिविनिटी पे बिलीव करते थे, गॉड के मैसेज के बिलीव करते थे, जो बाइबल में गॉड ने कह दिया बस हमने वो करना है, ठीक है, और उसके लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। कैथोलिक कहते थे कि हम प्योरिटन से सुपीरियर हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हो गए। और आज देखें तो अमेरिका के अंदर प्योरिटन ज़्यादा हैं। उसके बाद नेटिव अमेरिकन को उन्होंने फोर्स करना शुरू कर दिया और कत्लो गारत शुरू हो गई। दे स्टार्टेड बीटिंग, किलिंग एंड मोस्टली पीपल, बिकॉज प्योरिटन एज वाज गोइंग ऑन दैट टाइम एंड द पीपल दे वर एक्सट्रीम इन देयर बिलीव एंड स्पेशली सोल्जर दे गो देयर, दे आल्सो बीटिंग पीपल, दे किलिंग पीपल, दे किलिंग इनोसेंट पीपल। उस वक्त एक फिलासफर था, एक स्कॉलर था, उसका नाम था जॉन कैल्विन। आपने नाम सुना होगा इसका, जॉन कैल्विन। जॉन कैल्विन ने उसने एक डॉक्ट्रिन पेश किया। उसने कहा यार तुम क्यों जुल्म करते हो, एक बंदा क्रिश्चियन नहीं गॉड ने पैदा किया, या उसे गॉड क्रिश्चियन नहीं बनाना चाहता, तो तुम कौन होते हो उसे क्रिश्चियन बनाने वाले? जब गॉड की मर्जी होगी, देखें आपसे गॉड राजी है, आपको क्रिश्चियन बना दिया। अब इनसे शायद गॉड अभी इनको क्रिश्चियन नहीं बनाना चाह रहा, तो आप क्यों इनको बनाना चाह रहे हो? ये तो उनका कसूर नहीं है, गॉड ने उनको नहीं बनाया, जब गॉड की मर्जी होगी तो उनको बना देगा। तो उसने कहा, उसने उन लोगों को मोटिवेट किया और उसका डॉक्ट्रिन इतना मशहूर हुआ कि इन्होंने फिर लोगों को मारना कम कर दिया, यानी लड़ाई ख़त्म हो गई। नहीं तो वो क्या कर रहे थे, प्योरिटन जुल्म कर रहे थे। ग्रेट अवेकनिंग मूवमेंट जो है, जो अमेरिका के अंदर, चूंकि अब अमेरिका के ऊपर एक छोटा सा कंट्री था इंग्लैंड, तो वो इतनी बड़ी रियासत जो है अमेरिका की 55 स्टेट जितनी बड़ी स्टेट है, इनके ऊपर वो हमला मतलब कब्जा किए हुए थे और इनसे ये टैक्स लेते थे। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है इनके ऊपर इम्पोज किया जाता। और अब अमेरिकन जो हैं वो चूँकि पढ़ भी रहे थे, वो वहाँ प्रोग्रेस हो रही थी, ये इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सभी वहाँ चले गए, उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिए और वहाँ पे लोग जो हैं, अब अमेरिकन पीपल दे स्टार्टेड टॉकिंग अगेंस्ट द इंग्लैंड पीपल। उन्होंने कहा छोटा सा कंट्री हमारे ऊपर हम ये कब्जा किए हुए, हमें ये हुक्म देता है कि भाई इतना टैक्स दो, इतना क्यों? वहाँ पे एक
अवेकनिंग इसे कहते हैं, ग्रेट अवेकनिंग मूवमेंट। ये स्टार्ट हुई थी 1730 में से 1740 तक। लोगों ने फिर लिटरेचर किसके लिए लिखना शुरू कर दिया? अमेरिका के हक में, अमेरिका के लोगों को जगाने के लिए। देखें, कोई भी मूवमेंट जो होती है ना, वो बगैर स्कॉलर और बड़े बड़े जो रिसर्चर होते हैं उनके बगैर नहीं चलती। आप कहते हैं ना फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फार्मर थे, पीसेंट थे, वर्कर थे, वो आगे थे, उनके पीछे लिखने वाले लोग थे। जो फ्रेंच के लोग थे स्कॉलर, वो पीछे उनके बैकग्राउंड पे, बैकड्रॉप पे या पीछे बैठे उनको गाइड कर रहे थे। तो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं, जैसे ईरान के अंदर इनकलाब आ गया तो ऐसे नहीं आया। इनकलाब आता है कैसे? रिसर्च के बाद कुछ लिखता है कोई, तो उस फिलासफी, उस साइकोलॉजी और वो जो एक आइडिया देता है, उस आइडिया के बेस पे फिर आता है रेवोल्यूशन। 1776 में अमेरिका को जब उन्होंने ये मूवमेंट शुरू की कि हमने इनसे जान छुड़वानी है और उनको अवेक करना शुरू कर दिया, सोए हुए अमेरिकन लोगों को। भाई छोटा सा कंट्री आप पे हमला, आपके ऊपर कब्जा किए हुए, इतना बड़ा कंट्री, मतलब एक इतना छोटा सा बच्चा हो और वो इतने बड़े बंदे को क्या करे, उसको डरा रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही हिसाब किताब था कि छोटा सा इंग्लैंड कंट्री और इतने बड़े कंट्री को उसने क्या यरगमाल बनाया हुआ, टैक्स ले रहा है। तो एनी हो, ये चल रहा था। तो 1776 में, 1776 में नोट कर लें, अमेरिका ने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। वो उनके साथ एक लड़ाई होती है, फिर उनके ट्रुप्स के साथ लड़ते हैं और अमेरिकन जो हैं वो खुद लड़ते हैं और अल्टीमेटली आज़ादी हासिल करते हैं 1776 में। यानी 1776 के बाद, यानी इससे पहले जो है, अब मैं सारी कॉलोनियल लिटरेचर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा लिटरेचर जो है। फिर क्या हुआ, 1776 में ही इन्होंने आज़ादी हासिल की और उसी वक्त लिखा गया, डिक्लेयर कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका को क्या डिक्लेयर कर दिया गया? यूनाइटेड स्टेट। ये पॉइंट नोट कर लें, 1776 और 1776 को ही आज़ादी हासिल की और इसी को ही इन्होंने फिर क्या किया, अपना लाभ भी एक चार्ट आउट किया, वो भी